Hello everyone. So students, I hope that you all are well. And in our previous session, we were doing economics chapter 3, that is money and credit. That is lastly, the last topic that we had discussed in our previous session was about the demand deposits with the bank. That is, in brief, over here we have discussed about demand deposits. Now let's continue with that topic now today, students. So students, lastly we have discussed about the meaning of the term demand deposits. That is, the deposits in the bank account which are there, they can be withdrawn on demand. Okay, since they can be withdrawn on the demand, so these deposits are called as demand deposits. Now today, the first thing that we are going to discuss over here is check. मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में बताया अबाउट डिमांड डिपॉजिट. आप बैंक में जाओगे, आपने मनी डिपॉजिट कर रखा है, आप बैंक में जाके कैसे अपना मनी विड्रॉ करोगे? कुछ मीडियम तो होना चाहिए ना, आपके पास कुछ सोर्स होना चाहिए जिससे आप मनी लेके आओगे. क्या होगा वो? तो दैट इज इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ अ चेक. नाउ व्हाट इज दिस चेक? See the definition over here also I have attached in the slide. So what is check? First of all, a check is the paper instructing the bank. ठीक है, चेक क्या है? It is the paper instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to the person's account in whose name the check has been issued. ठीक है, इट माइट बी लाइक दिस कि आप खुद गए बैंक में और आपको खुद को मनी विड्रॉ करना है, तो क्या होगा आपको वहाँ पे? यू हैव टू मेक अ चेक एज ए रिटन एज सेल्फ. ठीक है, सेल्फ लिखते हैं. अगर आप खुद मनी विड्रॉ कर रहे हो तो आपको चेक पे क्या मेंशन करना पड़ेगा? वेयर द कॉलम ऑफ पे इज़ गिवन टू हुम द मनी इज़ टू बी पेड, वहाँ आपको मेंशन करना होता है सेल्फ. ठीक है, बट अगर आप किसी और पर्सन को चेक बना के दे रहे हो तब उस केस में क्या होगा? यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन ऑन द check. Even the specimen of check is being attached over here. It's quite blurry, but you can see at the top the date is there, then whom the amount is to be paid, that is there, then the rupees column is there, you have to fill up that, then it's to be written in numerals also, that's there, then signature is to be done by that person. ठीक है, so this is how the check is being issued by a person. Other things for this check, you can even see a specimen of check is given on page 41 in your books. From there it will be more clear to you. A specimen is given there. तो ये check है क्या actually? A check is the paper instructing the bank to pay a specific amount from a person's account. From a person's account की means जिसने check बना के दिया, to the person's account in whose name the check is being withdrawn, means कि जिसके नेम पे वो चेक बना के दिया. ठीक है, the facility of the check against the demand deposit, it makes it possible to directly settle the payment without the use of the cash. इसमें क्या हो गया? विदाउट द यूज ऑफ द कैश क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली क्या होगा यहाँ पे? even the amount can be transferred to the account of the person. ठीक है, तो this is about check. Now let's start the next topic from the chapter, that is the loan activities of the bank. ठीक है, तो in terms of the loan activities of the bank, if we are going to discuss, यहाँ पे क्या होता है? हमने मनी डिपॉजिट किया बैंक में. ठीक है, हमारा मनी बैंक के पास में है. बैंक उस ही मनी को क्या करेगा? द सेम मनी कैन बी यूज्ड बाय द बैंक फॉर एक्सटेंडिंग लोन्स टू द सिटीजन्स.
अब मैंने अभी आपको प्रीवियसली बताया था कि हम जब डिमांड करेंगे तो हम विड्रॉ भी कर सकते हैं मनी को, कभी भी किसी भी पर्सन को रिक्वायर्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो बैंक्स क्या कर सकते हैं यहाँ पे, बैंक क्या पॉलिसी फॉलो करते हैं एक्चुअली, बैंक्स कीप ओनली अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स विद देमसेल्फ, ठीक है। जितना भी मनी उनके पास आया, जितना भी डिपॉजिट है उनके पास, अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ दैट is being kept by themselves as the provision to pay the depositors who might come to withdraw from the bank on any given day, ठीक है। और बाकी का जितना बचा, जितना उनको लगता है कि इतना रिक्वायर्ड होगा किस चीज़ के लिए, फॉर पेइंग, कोई भी पर्सन आएगा विड्रॉ करने के लिए तो उसको मना तो करेगा नहीं बैंक की, नहीं हमारे पास तो मनी नहीं है, हमने तो लोन दे दिया उसका, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो बैंक क्या करता है, बैंक सबसे पहले स्मॉल प्रपोर्शन खुद के पास रख लेता है फॉर पेइंग दैट टू द डिपॉजिटर्स, और बाकी का जितना मनी बचा, बैंक्स यूज द मेजर पोर्शन ऑफ दैट डिपॉजिट्स टू एक्सटेंड द लोन। लोन के लिए जो दूसरा टर्म यूज होता है यहाँ पे वो क्या है, दैट इज इट लोन कैन बी इवन टर्म्ड एज द क्रेडिट ओवर है। द बैंक्स विच आर देयर, they mediate between those people who have surplus funds and those people who are in the need of those funds। surplus fund किसके पास होंगे, डिपॉजिटर, जिसने मनी डिपॉजिट किया बैंक में उसको क्या बोलोगे, डिपॉजिटर, और जिसने मनी लोन पे लिया, बोरो कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, बोरोअर। तो बैंक यहाँ पे कैसे एक्ट कर रहा है, मिडिल मैन की तरह से। तो बैंक्स मीडिएट बिटवीन द पीपल हु आर हैविंग सरप्लस फंड्स एंड दोज हु आर इन द नीड ऑफ दोज फंड्स। अब यहाँ पे बैंक क्या करेगा, बैंक को क्या फ़ायदा होगा इस सारे केस में। लास्टली मैंने आप लोगों को बताया था कि बैंक क्या कर रहा है, जिस पर्सन ने मनी डिपॉजिट कर रखा है उस पर उसको इंटरेस्ट भी दे रहा है, ठीक है। तो बैंक को तो लॉस हो गया ना उस केस में, इंटरेस्ट भी दे रहा है, मनी भी उसने रख रखा है, सेफ्टी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट भी दे रहा है। बैंक की इनकम कहाँ से होगी, फ्रॉम वेयर द बैंक विल बी एबल टू अर्न। अभी मैंने बताया कि बैंक के पास जो सरप्लस है वो सरप्लस बैंक ने कैसे यूज़ किया, बैंक्स विल बी यूजिंग दैट सरप्लस फॉर एक्सटेंडिंग द लोन। अब जब बैंक ने किसी को लोन दे रखा है तो बैंक उस पर क्या करेगा, banks charge a high rate of interest on loan than what they offer to the depositor, ठीक है। that means what over here, इसका सिंपली मीनिंग ये है कि जिस पर्सन को बैंक ने मनी एज अ लोन दिया है उससे क्या लेंगे, उससे इंटरेस्ट लेगा, ठीक है, उसको इंटरेस्ट देगा नहीं, उससे इंटरेस्ट लेगा। और जब इंटरेस्ट खुद ने कलेक्ट किया तब उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या होगा, द बैंक विल बी चार्जिंग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दैट। और जब खुद ने इंटरेस्ट देना है डिपॉजिटर को तो वो इंटरेस्ट कैसे देगा, दैट वुड बी गिवन एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ दिस डिफरेंस विच इज़ देयर, द डिफरेंस बिटवीन वॉट इज चार्ज्ड फ्रॉम द बोरोअर एंड वॉट इज पेड टू द डिपॉजिटर, ये क्या है, दिस इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बैंक, ठीक है। दिस एक्ट्स एज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर बैंक। अब यहाँ पे सारे प्रोसेस में मैंने आप लोगों को एक टर्म बताया लोन, लोन के साथ साथ में मैंने अटैच किया टर्म क्रेडिट। नाउ व्हाट इज दिस क्रेडिट, क्रेडिट और लोन refers to an agreement in which the lender supplies the borrower with the money। lender कौन, जो दूसरे को lend कर रहा है, मनी दे रहा है उधार पे, और borrower जो मनी borrow कर रहा है। तो the lender supplies the borrower with the money, goods or services in return for the promise of the future payment। क्यों देगा, कि फ्यूचर में उस पर्सन ने क्या प्रॉमिस किया है, फ्यूचर में पर्सन ने प्रॉमिस किया है कि आई विल बी रीपेइंग दैट पर्टिकुलर अमाउंट टू यू। इन सम सिचुएशंस क्रेडिट इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल रोल, बट इन सम सिचुएशंस इट इवन मेक्स द सिचुएशन वर्स्ट।
वर्स्ट मीन्स कि क्या चांसेस है, इवन द पर्सन माइट बी कॉट इन डेट ट्रैप, ये भी हो सकता है. डेट ट्रैप का मीन्स क्या, कि हमने लोन लिया था और क्या हो गया, इट इज़ नाउ बिकमिंग डिफ़िकल्ट फॉर अस टू रीपे द लोन. You can see the definition of the debt trap through this slide. At the time the repayment of the loan becomes difficult and credit, instead of improving the earning, pushes the borrower into the situation from which recovery is very difficult and painful. कि पर्सन ने लोन ले तो लिया बट अब आगे फ्यूचर में क्या हो गया, इट हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट फॉर द पर्सन टू रीपे द लोन. For this credit situation, 2 examples are attached in your book. ठीक है, that is one of festival season and another one is Swapna's example on page number 43. Read those 2 examples in detail so that this situation of credit and debt trap both would be clear to you more. ठीक है, and other things we are going to discuss in our next session. That is, we are going to start up with the topic of terms of credit, and also we are going to discuss the 2 examples, that is the festival season and the Swapna's problem. So that's it for today class. Thank you.